Hello Chapati, once again welcome to back in my YouTube channel. My name is Santosh Agari. It's my YouTube channel Agrari Classes, and we are providing the video of physics and maths and English. But there is different between the CBSE board and UP board. The three subjects videos are providing on this channel for UP board, but only and only one subject as a physics is providing by me on this YouTube channel. So dear students, it's my humble request to all of you, if you are visiting the first time on my YouTube channel, so please watch my video and realize the topic, realize the concept, and if my concept has realized to you really, so please subscribe my channel and press the bell icon for to get the latest notification on this channel, because this channel provides you very fast notification. So please subscribe my channel, I was telling you, and it is class especially for class 10 students. Okay, so if class 12 students have visit to this channel, so please ignore it. This class is especially for class 10th students, as no class 10th. So right here first of all, class 10th, topic is chapter name electricity. Okay, chapter electricity running, and in this chapter we discuss about the very important topic, just like as a current, electric current. What is electric charge, क्या होता है, properties of electric charge क्या होता है, electric potential difference, and some numericals based on the electric current. Okay, so after a long period we are coming here to take a new concept, Ohm's law. Okay dear, so in this lecture we discuss about the Ohm's law. Okay, so Ohm's law, before to start the class, Ohm's law we discuss about the previous point, because previous point is best to fast to study in this class. Okay, so before to start this lecture, discuss about the previous point. Which point has clear in the previous lecture, which point has clear in the previous lecture, just like as a some important symbol, just like as a ammeter, voltmeter and galvanometer, electric ammeter. वही बात हुआ, electric meter, how switch, crossed wire without joining, junction wire or joined wire. So these types has symbol is used in current, electricity or in commercial. आप घरों में ऐसे सिंबल को यूज करके ये पाओगे, कहीं पे आमीटर बना होगा, कहीं पे वोल्ट मीटर बना होगा और कहीं पे गैल्वेनोमीटर बना होगा डियर. तो बहुत ध्यान से समझना इस क्लास को, और हर एक लेक्चर जो होता है डियर प्रीवियस पॉइंट से जुड़ा होता है. तो प्रीवियस पॉइंट को अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिए. अगर दिल नहीं कर रहा है उसको विजिट करने का तो कोई बात नहीं, बने रहिए इसी चैनल पर, इसी लेक्चर में बने रहिए. मैं पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा के जाऊंगा. सो डियर, ये हमारा क्लास जो स्पेशली है ओम्स लॉ पे है. ओम्स लॉ क्या होता है, व्हाट द रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, इन सब टॉपिक पे क्या करेंगे आज हम डिस्कस करेंगे. हालांकि कंडक्टिविटी आपके सिलेबस में नहीं है, येट ऑल्सो आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड टू यू. मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और 100% है आपको टॉपिक जरूर समझ में आएगा डियर. तो ओम्स लॉ को आप ऐसे डिफिनीशन की तरह मत समझिए कभी भी. अगर आप ओम्स लॉ को एक डिफिनीशन की तरह समझ रहे हैं तो बिल्कुल भाई गलत बात है. ओम्स लॉ को आप रियलाइज करो, ओम्स लॉ को आप रियलाइज करना सीखो. रियली में इसके कॉन्सेप्ट अपने आप आसान हो जाएंगे, इसके कॉन्सेप्ट अपने आप आसान हो जाएंगे डियर. क्लियर हुई बात ना. देखो सपोज दैट आपको मैंने बैटरी दिया, एक क्या दिया, बैटरी. देखो सबसे पहले जाने कि ओम्स लॉ, ओम्स ने क्या किया, ओम्स एक वैज्ञानिक थे जिसको बोलते हैं फिजिस्ट. क्या ये फिजिस्ट है, और ये 1826 में इस रूल को 1826 में क्या किया, एस्टेब्लिश किया. रिलेशन जो बताया, ये जो रिलेशन किसके किसके बीच का है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड करंट.
है ना। सबसे पहले आप समझो, जो ओम्स लॉ है, ओम्स ने क्या किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड करंट के बीच रिलेशन बताया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं बोलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच क्या बताया, रिलेशन बताया। और किस टाइप का रिलेशन बताया वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं और वहीं से समझ में आ जाएगा। क्लियर। तो मैंने आपको एक बैटरी दिया, हमने कहा एक बैटरी ये 20 वोल्ट का है। ओम से देखा, प्रैक्टिकल किया कि एक बैटरी है वो कितने वोल्ट का है, 20 वोल्ट का। और सपोज कर लिया इन्होंने इस वोल्ट से, इस बैटरी से मान लो 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर। अब इन्होंने क्या किया, इस बैटरी को चेंज कर दिया और इस बैटरी को चेंज करने पर लेकर आया 40 वोल्ट का। बैटरी कितने वोल्ट का लाया, 40 वोल्ट का। लेक्चर लंबा होगा बट आप समझिएगा, बैटरी कितने वोल्ट का लाया, 40 वोल्ट का। तो जब इन्होंने बैटरी 40 वोल्ट का लाया तो उसी बल्ब को ऐड किया, उसी बल्ब से कनेक्ट किया, तो क्या पाया कि करंट देख रहे हैं इन्होंने, क्या देखा इन्होंने, करंट कि 20 एम्पियर फ्लो हो रहा है। फिर इन्होंने क्या किया, 60 वोल्ट का बैटरी लेकर आया और फिर करंट को ऑब्जर्व करना चाहा, तो करंट कितना मिल रहा है, 30 वोल्ट। तो इन्होंने क्या बोला, यार देख मैं क्या रहा हूं, लेकिन हाँ एक बात और, इन्होंने वायर को इस प्रकार से रखा, जिस बैटरी से या फिर जिस वायर में करंट फ्लो हो रहा था उसको इस प्रकार से रखा कि उसका फिजिकल कंडीशन अनचेंज है, बदल नहीं रहा है। फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या, फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या, फिजिकल कंडीशन जैसे वायर को जहां पे रखा उसका टेम्परेचर ना चेंज हो, उसका प्रेशर ना चेंज हो, उसका वॉल्यूम ना चेंज हो। ये सब अगर चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा उन्होंने रियलाइज किया, ओम्स बाबा ने रियलाइज किया कि अगर आपके पास कोई बैटरी है और बैटरी से वायर आपने कनेक्ट कर दिया और बैटरी को आप चेंज कर रहे हैं, एक बार 20 वोल्ट का, फिर 40 वोल्ट का और फिर कितने वोल्ट का, 60 वोल्ट का। बैटरी आप चेंज कर रहे हैं और करंट को रीड भी कर रहे हैं। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर ये कंडीशन, ये सब अनचेंज हो, अनचेंज हो जाए तो वोल्टेज जब बढ़ता है, जब वोल्टेज इंक्रीज करता है तो करंट हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है। बस इतनी सी बात बताया किसने, ओम्स ने। और इसी बात को आज आपको पूरा का पूरा अच्छे से डीपली समझना है। ओम्स बाबा ने क्या बताया, ओम्स बाबा ने कहा कि अगर किसी भी कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन, किसी भी कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन क्या है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, एरिया, ये सब चेंज ना करो, अनचेंज कर दो, तो उस वायर के किसी दो पॉइंट्स के अक्रॉस में अगर आप पोटेंशियल को चेक करना चाहेंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, बात समझ में आ रही है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो करंट के लिए क्या है, प्रोपोर्शनल है। बट कंडीशन ये जो फिजिकल कंडीशन है रिमेन्स अनचेंज होना चाहिए। तो डियर मैं पहले कैमरा चेक कर लेता हूं। हाँ, तो कैमरा बढ़िया सा चल रहा है, मजा आएगा। ओके, तो इसका अगर मैं डिफिनेशन राइट करना चाहूं तो क्या हो सकता है, अगर इसके मैं डेफिनेशन को राइट करना चाहूं क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको पता हो गया कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच क्या बताता है, रिलेशन बताता है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच क्या बताता है, रिलेशन। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आप रियलाइज करेंगे आज ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स ने क्या कहा था, ओम्स ने कहा इफ द फिजिकल कंडीशन
फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर, फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर if the physical condition of conductor remains unchanged, then potential difference across the end of wire और across the ends of conductor, ठीक है, then potential difference across the ends of conductor, ends of conductor is directly proportional to, बिल्कुल मजे से समझिए, इट्स डायरेक्टली proportional to, it's directly proportional to what? Current. Electric current flowing through it, है ना, बिल्कुल इजी समझिए। ओम्स बाबा ने क्या कहा कि अगर कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन चेंज ही ना करो, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं उनको बदलो ही ना, उनको कांस्टेंट बना के रखो, चेंज ना करो, तो उस कंडक्टर के किसी भी एंड्स पे जो पोटेंशियल होता है डियर, जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। इनके कहने का मतलब ये था, सो वी प्रोपोर्शनल आई, इनके कहने का मतलब क्या है, वी प्रोपोर्शनल आई, यानी कि वोल्टेज अगर इंक्रीज करेगा तो करंट इंक्रीज करेगा, अगर वोल्टेज कम हो गया तो करंट क्या होगा, कम होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ओम्स ने क्या कहा, ओम्स ने बताया कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम होगा तो करंट कम होगा। इसका मतलब यहां पे रिलेशन जो बन रहा है वो प्रोपोर्शनल का बन रहा है। किसका बन रहा होगा, प्रोपोर्शनल का। तो यहां पे मैंने क्या राइट किया, वी प्रोपोर्शनल आई, और इसी को हम बोलते हैं डियर ओम्स लॉ। अब आपको पता है फिजिक्स कहता है हमेशा कि जब कभी भी आप एक प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आपको जरूर लेकर आना पड़ेगा। क्या बोला, व्हेन यू रिमूव द प्रोपोर्शनल साइन देन यू विल गेट अ कांस्टेंट। तो वहां से यहां पर भी एक कांस्टेंट डियर आ रहा है, वो है R इंटू आई। तो अब इसी को मैं राइट कर देता हूं यहां पे V इक्वल टू, यहां पे खत्म करके V इक्वल टू आई आर। ये है ओम्स लॉ, बिल्कुल फाइनली। ये क्या है भाई, V इक्वल टू आई आर। आपसे कोई भी पूछता व्हाट इज द V, तो बोले कि पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द करंट आई, व्हाट इज दिस करंट, ठीक है ना। R क्या है नहीं पता है, बट आपको पता है कि यहाँ पे सर R जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन कांस्टेंट। तो डियर यहां पे R इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आई। हियर व्हाट, R इक्वल टू V अपॉन आई। यहां पे R को बोलते हैं रेसिस्टेंस। R इक्वल टू व्हाट, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, व्हाट इज दिस रेसिस्टेंस, रेसिस्ट करना। कंडक्टर के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें वह इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करती है, रेसिस्ट करती है, इसी को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। सो आर इज व्हाट, रेसिस्टेंस। अगेन रिपीट, V प्रोपोर्शनल I, V इक्वल टू आई आर। R इज व्हाट, कांस्टेंट। R क्या भाई, कांस्टेंट है। R क्या है, कांस्टेंट है। इसको हम बोलते हैं कंडक्टर का रेसिस्टेंस। R को क्या बोलते हैं, कंडक्टर का रेसिस्टेंस।
इतनी पूरी की पूरी बात आपके दिमाग में चल रहा होगा। अगर चल रहा है तो अभी इसको मैं बताता हूं। आर मीन्स क्या होता है, डियर लर्न कर लो। आर मीन्स व्हाट, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस ये क्या करता है, प्रॉपर्टी होता है, करंट का अपोज करता है। जब किसी भी वायर के अंदर करंट फ्लो होता है तो ये उसका अपोज करता है। जैसे यहां पे मैं अगर एक वायर बनाना चाहूं, देखो ये वायर बना लिया, तो यहां का जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस को थोड़ा सा हम इस तरीके से दिखाते हैं। मान लो यहां से यहां तक जो रेसिस्टेंस है आर है, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, वी था, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। तो आर क्या एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर का, जिससे वो क्या करता है, करंट का अपोज करता है। डिफरेंशियल राइट कर रहा है। बट बिफोर टू राइट द डिफरेंशियल ऑफ रेसिस्टेंस, सो प्लीज नोट डाउन इट। जल्दी से क्या करें, इसको नोट कर लीजिए। ओके, फिर हम स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है इसको समझाते हैं। पूरा का पूरा आपको आज फील मिलेगा, बिल्कुल फील मिलेगा, बिल्कुल फील मिलेगा। बस आप नोट करते रहिए। हाँ चलो अब देखिए, अब यहां पर रेसिस्टेंस का मैटर आ गया। रेसिस्टेंस हमारा क्या होता है, हमने आपसे क्या कहा कि रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय विच इट अपोज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इन इट। ओके, तो यहां पे बोल सकते हैं कि रेसिस्टेंस व्हाट, रेसिस्टेंस इज द properties of conductor. Resistance is the property of conductor by which it oppose of electric current, by which it oppose of electric current flowing through it, है ना। अब इसका सिंबल क्या भी मैंने बताया, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बोलो भाई, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आर से। और इसको कैसे दिखाते हैं, इस प्रकार से। और फॉर्मूला हमारा क्या आया था, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। आर इज इक्वल टू व्हाट, वी अपॉन आई। आर क्या, रेसिस्टेंस है। अब इसका यूनिट पे चर्चा कर लेते हैं, यूनिट पे। तो यहां पे वोल्ट पर एम्पियर, बट इसी को हम बोलते हैं, या कह सकते हैं, और राइट कर दीजिए यहां पे, इसी को हम बोलते हैं बच्चा ओम। साइंटिस्ट जो थे, फिजिस्ट जो थे, ओम, इन्हीं के नाम पर ही रेसिस्टेंस का यूनिट क्या बन गया, ओम। तो इसको हम ऐसे राइट करते हैं, ओम। इसको ऐसे दिखा दो, ये ओम। अगर कहीं पर ऐसे राइट हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओम। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस 5 ओम है, तो कैसे राइट करोगे, कंडक्टर का रेसिस्टेंस कितना ओम है, 5 ओम। तो ऐसे राइट करो, आर इक्वल टू 5 ओम। ओम बनाना आप सीख जाओ। ओम ऐसे बनता है, कैसे बनता है, इस तरीके से, ऐसे करो, ऐसे करके ऐसे आगे बढ़ा दो। ये किसका सिंबल है, ओम का। और ओम, व्हाट इज ओम, ओम इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। व्हाट इज द रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर by which it opposes of a flow of electric current. क्लियर, क्या बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल आपके दिमाग में पूरी की पूरी बात क्लिक करती हुई जानी चाहिए। हाँ, तो अभी तक मैंने क्या किया, आर के बारे में लर्न किया, आर का क्या होता है, वी अपॉन आई। अच्छा, एक काम और कर सकते, सपोज कर लो, इफ सपोज कर लिया कि करंट आपका 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है। अगर आपको कोई पूछा 1 ओम कितना होगा, व्हाट इज 1 ओम, डिफाइन टू 1 ओम, सो हाउ विल डिफाइन टू इट। सपोज दैट हियर करंट आई इक्वल टू 1 एम्पियर,
एंड वोल्टेज V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 1 वोल्ट. तो हियर गेट R इक्वल टू 1 ओम. It means when we are flowing the current 1 ampere after applied the voltage 1 volt, then we get the resistance of conductor what? 1 ohm. Okay, so here we can write if 1 ampere current is flowing, if 1 ampere current is flowing through the conductor after applying the potential difference 1 volt. After applying the potential difference what? 1 volt. Then resistance of conductor will 1 ohm. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी वायर में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिए, एक वायर उसके एंड्स पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिए और आपका 1 एम्पियर करंट फ्लो होने लगा, तो 100% है उस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना ओम होगा? 1 ओम होगा. क्या इतनी बात आपके दिमाग में जा रहा है? क्या इतना बात क्लियर हुआ? अगर इतनी बात क्लियर हुई है तो इसको नोट करिए और फिर हम इसको देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ. ग्राफ कैसा होगा V एंड I के बीच? सो नोट डाउन, जल्दी से नोट करिए. अब इसकी बहुत बड़ी बातों पे डिस्कस करना है हमें. सो प्लीज, ग्राफ क्या है, कैसे ग्राफ बनाते हैं? तो यहां पे मैं राइट कर दे रहा हूं ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V एंड इलेक्ट्रिक करंट I. आपको पता है कि V इक्वल टू IR होता है ना, तो इसका मतलब V प्रोपोर्शनल I. जो V है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा? लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ओरिजिन से पास करेगा. ग्राफ कैसे पास करेगा? ओरिजिन से पास करेगा, है ना. तो ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ यहां पे राइट करना पड़ेगा. ग्राफ will be straight line. Graph will be straight line passing through origin. तो एक काम ना करते हैं हम, यहां पे देखो, चलो बना दो भाई ये ग्राफ बना देते हैं. मुन्ना, ग्राफ मैंने बनाया. देखो एक्स एक्सिस पे मैं क्या कर रहा हूं? वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं. ये किस में है? वोल्ट में है. और वाई एक्सिस पे करंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं. यहां पे इसको एम्पियर में रखा जा रहा है. क्लियर? तो यहां पे सपोज दैट वोल्टेज हमारा कितना है? V1 है. तो यहां पे करंट कितना आ रहा होगा? I1. क्लियर? तो इसका ऑर्डिनेट कितना है? V1 कामा I1 हो गया. यहां पे V2, यहां पे कितना रहा होगा? सपोज दैट यहां पे I2 हो गया. यहां पे V3, यहां पे कितना? I3. ऐसे पॉइंट आते चले गए. क्लियर? अब देखो ग्राफ जब ड्रा करते हो तो ग्राफ आपको ऐसे ही मिलते हैं. ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से मिलता हुआ जाएगा.
ऐसे बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा दो, है ना, ऐसे करते चले जाओ। क्लियर? तो ग्राफ आपको कैसे मिल रहा है देख रहे हो ना, V1 I1, V2 I2, V3 और I3। ग्राफ कैसा मिल रहा है बोलो, ग्राफ कैसा दिख रहा है? ये ग्राफ क्या है? ये VI ग्राफ है, या VI कर्व कह सकते हो, VI ग्राफ बोलो सही रहेगा, VI ग्राफ। तो ओम्स लॉ में V एंड I के बीच जो ग्राफ ड्रा करते हैं ना, वो जो ग्राफ ड्रा होता है वो लीनियर ड्रा, लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब किससे पास करती है वो? ओरिजिन से पास करती है। किससे पास करेगी? ओरिजिन से। अब एक काम कर दे रहा हूं यहां पे, इसका नाम बोलो A, B और C। यहां पे मैं ट्रायंगल बना रहा हूं कुछ इस तरीके से, ABC। अब अगर इसको चेक करना चाहेंगे सर, कहेंगे V2 माइनस V1, तो ये कितना हो गया? डेल्टा V। और ये हमारा कितना हो गया? डेल्टा I। क्लियर? ये हमारा कितना? डेल्टा V। और ये हमारा कितना? डेल्टा I। तो अगर देखें इन ट्रायंगल, ट्रायंगल में देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ABC, तो यहां पे इसको आप थीटा सपोज कर लो, कितना डिग्री? थीटा डिग्री। तो यहां पे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो यहां पे क्या हो गया? डेल्टा I अपॉन डेल्टा V, डेल्टा I अपॉन डेल्टा V। क्लियर? सो यहां पे tan थीटा ये 1 अपॉन, इसको नीचे करो और डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। तो बच्चा यहां पे क्या हो गया? tan थीटा इज इक्वल टू R, सॉरी 1 अपॉन R। ये आया ना, बिकॉज ये R है पूरा, देखो 1 अपॉन ये पूरा क्या हो गया? R हो गया। तो यहां पे अगर R इक्वल टू चाहूंगा मैं, क्या होगा? 1 अपॉन tan थीटा। और डियर मैं एक बात बताना चाहता हूं, यहां पे जो tan थीटा होता है, tan थीटा, इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ। tan थीटा को हम क्या बोलते हैं डियर? स्लोप ऑफ ग्राफ। क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ ग्राफ। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्लोप है उसका इनवर्स, उसका जो रेसिप्रोकल होता है, इनवर्स मत बोलिए, रेसिप्रोकल बोलिए। तो स्लोप का जो रेसिप्रोकल है वो रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको कहीं पे ग्राफ ऐसे दे दिया हो, अब ग्राफ से आपको रेसिस्टेंस चेक करना हो, तो कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ये चेक करना है कि उस ग्राफ का स्लोप कितना है। अगर ये 30 डिग्री रहा होता तो कह देते सर R इक्वल टू 1 अपॉन tan 30, R इक्वल टू 1 अपॉन tan 30 इक्वल टू कितना आएगा? 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। यहां पे इसको भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? तो इसमें कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड फॉर कैलकुलेशन, ओनली calculate the angle and find out the value of tan theta, and then we get the its reciprocal, which will be the final answer and which will be the resistance. So for to getting the resistance by the help of V and I graph, only find the angle or only find the slope of the graph. As you get the slope of graph, just you can realize the answer of the question by the help of formula R equal to 1 upon tan theta. So dear, learn it, remember it. The reciprocal of slope of the graph represent to the resistance of the conductor. Okay dear. So I am removing this point, erase it, and so please note down it, and then we write the language of this sentence, language of this mean. Okay, of this point. So please note down it. We are erasing here. Means क्या हुआ था बोलो भाई? R इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, R इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। means what? reciprocal of slope of
रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ रिप्रेजेंट टू रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, resistance of conductor. Okay dear, clear? So if you have been clear this point, so I am raising to this point and then we discuss about the लैब में कैसे इसको आप प्रूव करेंगे, उसके लिए सर्किट अरेंजमेंट कैसे होता है उसके बारे में बताते हैं। यार कि प्रैक्टिकल में यार किसी भी अगर आपको ओम्स लॉ को प्रैक्टिकल करने के लिए दे दिया जाए लैब में, तो आप अपार्ट्स को कैसे सेट करोगे उसके बारे में देखते हैं। ओके, so note down it. So dear, आज आपका टॉपिक होगा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ओके, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, इसका क्या करना है? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करना है। क्या करना है भाई? ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले क्या जरूरत पड़ती है उसको हम राइट कर देते हैं। अपार्ट्स करो, सबसे पहले एक प्लग की होगा, प्लग की मैंने ले लिया। एक बैटरी ले लो, ड्राई सेल मार्केट में आता है, ठीक है। बैटरी, वोल्ट मीटर, अमीटर, रेजिस्टेंस वायर, रेजिस्टेंस वायर एंड एट लास्ट में रियोस्टैट भी रहते हैं। बिकॉज करंट को कंट्रोल करना रहेगा, तो जब करंट को कंट्रोल करना रहेगा भाई, तो भैया तो क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। कौन लेना पड़ेगा? रेसिस्टेंस। बिकॉज रेजिस्टेंस ऐसा होता है जो करंट को क्या करता है? कंट्रोल करता है, जिसको बोलते हैं करंट कंट्रोल। करंट को कंट्रोल कर लेना, कम करना, ज्यादा करना। बिकॉज जैसे बैटरी को क्लोज करते हैं, करंट जो होता है बहुत तेजी से फ्लो होता है, तो उस करंट को तेज नहीं फ्लो करना है। करंट को जस्ट जैसे तेजी से फ्लो हो रहा है उसको डाउन करना है। डाउन करने में करंट को धीरे धीरे बढ़ाना है, करंट को धीरे धीरे बढ़ाना है, और वोल्टेज भी चेक करते रहना है। लास्ट में ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इसी तरीके से आता है ना? सारे को समझ में आया होगा। अब देखो इसका एडजस्टमेंट कैसा होगा, इसका एडजस्टमेंट कैसा होगा। एडजस्टमेंट, इसका एडजस्टमेंट हम किस प्रकार से करते हैं, एडजस्टमेंट हम किस प्रकार से करते हैं उसको आप देखिए ध्यान से। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक रेजिस्टेंस वायर ले लेना है। रेजिस्टेंस आर तो होगा ही, आपको पता है रेजिस्टेंस आर होगा कि नहीं होगा? होगा सर। अब इसको क्या करना, देखो आप सीधे एक आप डाल देंगे यहाँ पे बैटरी, यहाँ पे क्या डाल देंगे? बैटरी। लग तो नहीं बट बैटरी है ही। क्या लगा दिया? बैटरी। यहाँ पे प्लस और ये क्या? माइनस। क्लियर बात? यहां पे क्या लगाया मैंने? प्लस, और यहां पे क्या लगा दिया? माइनस। अब आपको पता है, आपको पता है कि आपको लगाना है अमीटर, लगाना है। अभी प्लग की लगाना है, तो प्लग की को मैं यहां पे ऐड कर देता हूं, प्लग की को यहां। ये ओपन है, अगर ये ऐसे होता इसका मतलब ये क्लोज नहीं है। सॉरी, ये अभी क्या है? ये कुंजी को अभी मैंने बंद नहीं किया, ये ओपन की है। ओपन की का मतलब अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे इसके अंदर एक डॉट पॉइंट बना दूंगा, क्या बना दूंगा?
डार्ट पॉइंट बता दूंगा। 1 सेकेंड। सेल हो गया, बैटरी हो गया, यहां से क्या लगा, यहां पर ऐड कर देते बैटरी बी। ये क्या की है, हमने क्या बोला था कि अगर इसको यहां पे ऐसे कर दिए इसका मतलब ओपन है, बट अगर यहां पे ऐसे करिए इसका मतलब क्लोज, इसका मतलब करंट फ्लो है। अब आपको सेट करना, देखो प्लग की का काम फिनिश, बैटरी का काम फिनिश, रेजिस्टेंस वायर था, इसका भी काम फिनिश। आपको सेट क्या करना है, वोल्ट मीटर, अमीटर और रियोस्टेट। सो डियर क्या करना होता है, आपको अमीटर को हमेशा सीरीज में ऐड करना है। तो अमीटर को आपको यहां पे ऐड कर देना है। ये क्या हो गया, अमीटर। और अमीटर को इस प्रकार से ऐड करना, इसका प्लस से हो और माइनस से हो, प्लस से हो और माइनस से हो। अब इसको सुनो ध्यान से, आगे आपको ये रेसिस्टेंस, इसका सपोज दैट आर का कैलकुलेट कर लिया आप, रेसिस्टेंस कितना आ रहा है, आर आ रहा है। तो यहीं पे आपको वोल्टेज चेक करना है। तो जिस आपको मैंने कहा था कि आपको वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाना है, जिस एंड्स पे वोल्टेज को चेक करना होता है उसी एंड्स पे वोल्ट मीटर को पैरेलल में सेट कर दो। वोल्ट मीटर को यहां पे मैंने सेट कर दिया। ओके, क्लियर। अब वोल्ट मीटर को कैसे सेट करना है, प्लस कहां से होगा, माइनस कहां से होगा। डियर प्लस से होता है, माइनस से होता है। प्लस से कनेक्ट होगा, माइनस से कनेक्ट होगा। और इस वायर को आप ऐसे राइट लेकर आओ और यहां पे ऐसे RH को सेट कर दो, और H को। RH मीन्स क्या होता है, रियोस्टेट, जो क्या करता है, करंट को कंट्रोल करेगा। इसका काम क्या है, करंट को सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करना। और इसका सिंबल आपको पता होगा कि ऐसे मैंने बनाया, इस तरीके से। थोड़ा बहुत लोग स्टाइल से बनाते हैं, ऐसे भी थोड़ा सा प्यारा लगने लगा। ओके, तो ये था। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना हो लैब में जाकर के, तो ऐसे पार्ट्स को सेट करते हैं सबसे पहले। जब ऐसे आपका सेट हो जाएगा तो पहले क्या करेंगे, प्लग को की जो प्लग की है उसको प्रेस करेंगे। क्या करते हैं हम, कैसे करेंगे, प्रोसीजर इसका देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रोसीजर क्या था इसका, सबसे पहले क्या करेंगे आप, तो मैं से बता रहा हूं, ओरल आप करना है जब लैब में आप जाएंगे कभी। इस प्लग की को प्रेस करेंगे, करंट बहुत तेजी से फ्लो होगा। आपको क्या करना है, जस्ट इसके हेल्प से वोल्टेज को थोड़ा सा कम करना है। करंट को कम करेंगे तो वोल्टेज क्या होगा, कम होता जाएगा। तो आपको एक टेबल तैयार कर लेना है इसे, ऐसे एक तरफ आई, एक तरफ बी, एक तरफ आर का, एक तरफ बी। आप करंट चेक करिए, इसमें नोट करते जाओ। करंट पहले ज्यादा होगा, कंट्रोल करेंगे कम आएगा। तो जब करंट कंट्रोल हो गया, यहां पे कम आ गया, करंट कंट्रोल यहां पे कम आ गया, उसके करस्पॉन्ड में वोल्टेज चेक कर लो कि हमारा वोल्ट मीटर कितना वोल्टेज दे रहा है। तो करंट को चेक कर लूंगा, वोल्टेज चेक कर लूंगा। फिर अब धीरे धीरे करंट को बढ़ाया जाएगा। आप धीरे धीरे करंट को बढ़ाएंगे, फिर करंट यहां पे आएगा, वोल्टेज कुछ करंट चेंज करेंगे, वोल्टेज फिर चेंज होगा, फिर करंट चेंज करेंगे, वोल्टेज फिर चेंज करेंगे। और हर बार आप यहाँ पर रेजिस्टेंस को निकालते रहना। आप क्या ऑब्जर्व करते हुए पाएंगे कि सर, आप देखेंगे कि हर जगह पे रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, यहाँ पे सेम, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, सेम, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, सेम। हर जगह पर रेजिस्टेंस क्या होगा, आपको सेम मिलता चला जाएगा। या फिर अगर आप इनके बीच एक ग्राफ ड्रा करते हैं, ग्राफ किसका, I एंड V का, तो ग्राफ कैसा मिलेगा, लीनियर ग्राफ मिलेगा, यानी कि स्ट्रेट मिलेगा। कैसा मिलेगा डियर, स्ट्रेट मिलेगा डियर। तो ये आपने देखा, ओम्स लॉ को मैंने इतनी डीपली समझाया डियर। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा ओम्स लॉ में, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ, बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। ओम्स लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल्स होगा जो बेस्ड होगा, उस पे हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। चलते हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू।